हेलो गाइस, स्टार्ट करें? कर ले। ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी हमको कोरिलेशन और रिग्रेशन देखना है। और देखो, इसके लिए ना एक मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ी क्लियर होना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आगे जाके एक्सेल में रिग्रेशन कैलकुलेट कैसे होता है, बैकएंड पे वर्किंग कैसे करता है, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू ही अपन जस्टिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट कि आपको थोड़ा हाइपोथेसिस पता है। वी वोंट गो इनटू डिटेल्स। Isaac, I'll try to communicate in English. I think I'll have it. It will be a bit difficult, but yeah, let's go. Okay, guys. So let's start with correlation first. Okay. So basically, whenever we have to find out a relation between any of the two components. For example, let's just consider what ma'am considered in her example, the effects that advertisement expenditure has on profit before tax. So if you need to find out a relation between advertisement expenditure and profit before tax, what will you do is that you will try to plot it in a graph. Let's take this as ad expenditure, the x-axis, and the y-axis will be PBT, profit before tax. Okay, guys. So, abhi we don't know whether the advertisement expenditure has any impact on profit before tax or not. In general, let's assume that जो entity है, the entity has an average advertisement expenditure x bar. ठीक है, क्योंकि अपन कोई भी चीज का एवरेज जो बोलते थे, the average was this x bar only. करेक्ट, जो मीन कहते थे। फिर अब अगर इसमें कोई वेरिएंस होता है, कोई वेरिएबिलिटी होती है, तो विल से दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स। अभी के लिए आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, दीज आर द टर्म्स दैट नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, सो जस्ट होल्ड ऑन। सिमिलरली अब मैं पीबीटी को वाई वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड द एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट an organization might have, this organization, let's assume it to be y bar, and similarly the variance would be variance of y. ठीक है guys, now what we need to see here is कि let's assume abhi the expenditure is somewhere around 20 rupees, and when the expenditure is 20 rupees, the profit is, let's say, 40 rupees. तो दैट इज दिस पॉइंट, ये वाला। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, करेक्ट है? ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे व्हेन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज समथिंग 21, द रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड बी 41, ऐसे 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 देयर वुड बी मेनी पॉइंट्स लाइक दिस। तो व्हेन यू प्लॉट द रिलेशन between this, how do you find a relation? You simply make a line जो which is closest to each and every point. जितना ज्यादा, मतलब जितना आपके डेटा के सेंटर्ड द लाइन कम्स, उतना बेटर होगा। तो दिस गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अभी गाइज दो चीजें समझना, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स। माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इस केस में? दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट है क्या प्रॉफिट पे? नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यार एवरीबडी इज वे टू साइलेंट, थोड़ा तो कुछ बोलो। ठीक है, अभी देखो, मेरे को ये डिटरमाइन करना है, आई नीड टू डिटरमाइन कि
my advertisement expenditure has some impact on profit before tax. So advertisement expenditure in itself is an independent variable, and we have to check whether profit is dependent on this. तो profit is a dependent variable, correct? Correct. ठीक है. तो for this part, that is why हम ना that is why we'll say कि we'll plot this graph, और हमको ये लाइन निकालनी है, this line, ये जो लाइन है, एंड वील चेक द रिलेशन. अब क्या होता है, इसको रिलेशन को कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट इट वन अदर वे, दैट इज बाय कैलकुलेटिंग कोवेरियंस ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, कोवेरियंस. बट द थिंग इज, in the case of covariance, there is generally some unit. For example, your profit before tax would be in rupees term, your advertisement expenditure would be in rupees per hour. यानी how much amount have you spent per hour of advertisement, correct? So इसकी भी कुछ unit आएगी, but we don't want any data in unit. You can't define the relation between them in between like rupees per hour. That is not how you define a relation. So what we do is we use coefficient, sorry, correlation coefficient, that is denoted by R. अब R क्या है? R का सिंपली फॉर्मूला इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. गाइस यू डोंट नीड दिस एनीवेयर, कहीं जरूरत नहीं है आपको. ठीक है. द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज वी यूज दिस बिकॉज यूनिट लेस है ये, देर इज नो यूनिट. ठीक है. कोवेरियंस एक्स वाई की यूनिट क्या आएगी? रुपीज पर आवर. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट? योर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो इसकी यूनिट रुपीज पर आवर रहेगी. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, इसकी यूनिट रुपीज रहेगी, दैट इज पीबीटी. तो ये सब कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इट विल बी अ यूनिट लेस फिगर. दैट इज वाई वी यूज आर, द कोएफिशिएंट कोरिलेशन, व्हेनेवर वी वांट टू गिव एनी रिलेशन बिटवीन देम. अब अंडरस्टैंड दिस by an example. We'll take off stock market for example. एक सेकंड रुकेगा. तूने ये एक्सप्लेन करा और ऊपर भी एक्सप्लेन करा, उससे पहले तूने दो आई थिंक चीजें टर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे इसके ऊपर. हाँ जी. हाँ, ये एक बार बता देगा, ये हेट्रो समथिंग समथिंग और जो ये लिखा है, ये मैंने मिस कर दिया. ना, दिस इज माय वो we started from here. You started from PPT. Yeah, this part, यहाँ से we started. इधर तूने वेरिएंस का क्या बताया है? नथिंग, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. मैं बता रहा था वेरिएंस का जैसे क्या रहता है, दैट each variable will have some variance, some variability. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो या पीबीटी हो, इट कैन नॉट बी फिक्स ना, थोड़ा तो वेरिएंस होगा. तो वो बता रहा था, इट इज नॉट रेलिवेंट. आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस टर्म कोवेरिएंस, उसके लिए मैंने वो इंट्रोड्यूस किया. गेटिंग बैक, ठीक है, गेटिंग बैक. सो वी कैलकुलेट आर. आर क्यों है? बिकॉज इट इज यूनिटलेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोरिलेशन बाय एन एग्जांपल, स्टॉक मार्केट एग्जांपल. लेट्स से आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है, लेट्स से अडानी पोर्ट, आपने अडानी पोर्ट का स्टॉक खरीद रखा है. ठीक है. और मार्केट का जो इंडेक्स है निफ्टी, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद द एग्जांपल. I'll go on ahead. लेट्स से कि निफ्टी आज के दिन में 2% इंक्रीज दिखा रहा है, और इसी बात पे मैंने जो अदानी पोर्ट ले रखा है वो भी 2% इंक्रीज दिखा रहा है. तो कैन यू सी द रिलेशन हियर कि निफ्टी बढ़ रहा है ना, तो मेरा अडानी पोर्ट भी 2% बढ़ रहा है. तो इनकी रिलेशन क्या है? पॉजिटिव है, करेक्ट? तो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सा रहेगा? निफ्टी इज इंडिपेंडेंट, निफ्टी इंडिपेंडेंट है. ठीक है. अब क्योंकि निफ्टी बढ़ रहा है, निफ्टी इज व्हाट? अ मार्केट इंडेक्स. करेक्ट. तो उसके बेसिस पे अडानी इज गेटिंग अफेक्टेड. या Now, how is Adani getting affected? Your Nifty index increases by plus 2%. So Adani also increases by plus 2%. Now get it, get these two things. Whenever you define correlation, there are two factors. एक होता है sign, यानी positive और negative, which is called direction. ठीक है. The other is magnitude.
कि हाउ मच, इफ इट इज पॉजिटिव देन हाउ मच पॉजिटिव इट इज, इफ इट इज नेगेटिव हाउ मच नेगेटिव. ठीक है. नाउ इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दैट 2% इंक्रीज इन निफ्टी रिजल्ट्स इन 2% इंक्रीज इन अडानी पोर्ट. तो रिलेशन, कोरिलेशन जो है उसके लिए एक चीज तो आ गई पॉजिटिव, यानी दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, Yeah. दे बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड. Yeah. अब मैग्नीट्यूड अंडरस्टैंड, जितना ये बढ़ रहा है it's increasing by 2%, same this is also increasing by 2%, so the magnitude is 1, पूरा पूरा impact है as it is. guys हमारा जो r रहता है ना, it will always lie between -1 and +1. ठीक है. तो अभी दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, ये दोनों के बीच के ही कोई वैल्यू आएगी, इसके इधर नहीं आ सकती, इसके इधर नहीं आ सकती. ठीक है. इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and +1. Prithvi, -1 and 1 included. हेलो, Hello. क्या बोला आपने? -1 and 1 included. Yeah, -1 and 1 included. See na, you have a positive relation between Nifty and Adani Port. ठीक है. And this increases by 2%. This also increases by 2%. तो that is perfectly positive. जितना ये बढ़ रहा है उतना ही वो बढ़ रहा है. ठीक है. तो this is what we call perfectly positive correlation. Perfectly positive. ठीक है. क्या हो रहा है कि ये ऐसा ग्राफ बनता है कि आपका एक यूनिट ये बढ़ा तो एक यूनिट ये बढ़ा, 2 यूनिट ये बढ़ा तो 2 यूनिट ये बढ़ा. गेटिंग इट? अब सिमिलरली लेट्स अज्यूम दैट आर निफ्टी अगेन इंक्रीज बाय 2%, बट एट द सेम टाइम मेरा अडानी जो है दैट इंक्रीज बाय जस्ट 1.5%. तो अब कैन यू सी द रिलेशन इज स्टिल पॉजिटिव बट द मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1. रिलेशन पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव डिटरमाइन हो गया है, बट इट्स नॉट परफेक्टली पॉजिटिव. 2% वो बढ़ रहा है तो ये 1.5% बढ़ रहा है बस. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल, जैसे मान लो इसको व्हील से रिलेशन जो आएगा ना इसका, ये 0.8 के आसपास आएगा. तो दिस इज हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. सिमिलरली एक लास्ट एग्जांपल कंसिडरिंग निफ्टी इंक्रीजेस बाय 2%, बट अडानी मेरा जो है वो 2% से गिर गया. तो अब देखो रिलेशन नेगेटिव है, निफ्टी बढ़ रहा है बट अडानी गिर रहा है. ठीक है. और नेगेटिव भी कैसी है? परफेक्टली नेगेटिव है. परफेक्टली नेगेटिव, जितना ये बढ़ा उतना ही ये गिरा. गेटिंग इट? तो दीज आर द काइंड्स ऑफ कोरिलेशन. एक होता है +1 जिसको परफेक्टली पॉजिटिव कहते हैं, एक होता है -1 परफेक्टली नेगेटिव. 0.8 वगैरह कुछ आएगा, 0.8, 0.9, 0.7, दीज आर हाईली पॉजिटिव. 0.2, 0.3 आएगा तो दीज आर लो पॉजिटिव. सिमिलरली नेगेटिव 0.2, नेगेटिव 0.3 आएगा तो लो नेगेटिव, और नेगेटिव 0.8, नेगेटिव 0.7 ऐसे आएगा तो हाई नेगेटिव. यानी रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है और हाईली नेगेटिव रिलेशन है. गेटिंग इट? Got it. Okay. So these are the kinds of correlation that you needed to understand. Now that you understand, let's move to an example जो मैम ने क्लास में दिया था, and I'll join in with my laptop. Just a second. Guys, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ पृथ्वी, ये मैग्नीट्यूड वाला एक बार बता देना, ये मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया यार मैंने, मैं बस बता रहा था कि जैसे देखो 2% निफ्टी के इससे अगर मेरा 1.5% या 1.8% बढ़ रहा है तो हाई मैग्नीट्यूड होगा, यानी ज्यादा कोरिलेटेड है. समझ रहे हो? और अगर मेरा मार्केट 2% बढ़ा है लेकिन मेरा अडानी का जो शेयर था वो थोड़ा बहुत ही बढ़ता, तो रिलेशन तो पॉजिटिव है पर ज्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है, ज्यादा हाईली पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है. तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं बस तुमको बताना चाह रहा था उस एग्जांपल के थ्रू दैट इज हाउ द रिलेशन वर्क्स.
नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं समझी। जैसे निफ्टी मान लो 2% बढ़ा और अडानी का हाँ जी 1.5% बढ़ा, हाँ जी। तो मैग्नीट्यूड लेस देन 1 कैसे हो रहा है? मैग्नीट्यूड लेस देन 1 इसलिए हो रहा है कि जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो, लेट्स कंसिडर ऐसे और ऐसे, ठीक है। दिस इज योर आर की फुल रेंज, सॉरी, ये आपकी आर की फुल रेंज है। लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट 0, ये -1, ये +1। once you determine that it's a positive relation, what do you mean by a positive relation? 2% बढ़ा तो ये भी कुछ परसेंट बढ़ा, बढ़ना डिटरमाइंस पॉजिटिव रिलेशन, सो यू विल क्विकली जंप ऑन दिस साइड, ठीक है। अब कितना बढ़ा, इफ दिस इंक्रीजेस 2 एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेस 2, इट्स अ परफेक्ट पॉजिटिव। इफ दिस इंक्रीजेस 2 बट दिस इंक्रीजेस 1.5, 1.8, 1.7, तो ये कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है, परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। गेटिंग इट? यस। दैट इज ऑल। देखो आर जो है ना वो ऑलरेडी +1 और -1 के बीच में, ठीक है। जब आप +1 कह रहे हो परफेक्ट, तो ये अगर आपकी सिचुएशन परफेक्ट है ये वाली, तो ये सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, समझे। तो इसीलिए दिस विल लाई समवेयर अराउंड हियर, 0.8, 0.7 ऐसे पॉइंट्स पे। ठीक। गॉट इट? Yes. Prithvi, I have a question. या तुमने -0.2 को लो नेगेटिव रखा है, -0.8 को हाई नेगेटिव, बट -0.2 is greater than -0.8, right? So shouldn't that be high or negative? व्हाट -0.8? I'm saying -0.2 is greater than -0.8, right? Yeah. Mathematically. Mathematically it's greater, but understand, mathematically this is higher negative and this is lower negative. अच्छा, ये ज्यादा नेगेटिव है ना इससे, 0.2 से ज्यादा नेगेटिव 0.8 है। गेटिंग इट? हाँ, तो दैट वे इट्स हाई नेगेटिव एंड इट्स लो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज टर्म्स, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो कितना नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव है क्या कि कम नेगेटिव, इतना भी नेगेटिव नहीं है कि अगर मार्केट 2% बढ़ रहा है तो मेरा थोड़ा बहुत ही पोर्टफोलियो गिरेगा। गेटिंग इट? तो दैट इज लो नेगेटिव। और अगर मार्केट थोड़ा चढ़ रहा है, मतलब मार्केट 2% चढ़ रहा है, तो मेरा भी पूरा 2% या 1.8% तो गिर ही जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि इम्पैक्ट ज्यादा है भाई। रिलेशन तो है, नेगेटिव रिलेशन है और इम्पैक्ट भी ज्यादा है। गॉट इट? ठीक है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, बिकॉज अभी ये आपको शीट में एक दिखाता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस। हाँ हाँ है। ठीक है, अभी दिस इज द एग्जाम्पल दैट मैम ने क्लास में कराया था। दिस इज द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। एंड दिस इज द प्रॉफिट का डेटा थ्रू आउट द ईयर्स। नाउ you need to understand कि when you need to find the correlation ना, तो there's a simple formula correl, ठीक है। you just need to choose the data points, ये एक डेटा पॉइंट हुआ and this is the other data point। आप इसको करोगे, ये आपको दोनों के बीच की कोरिलेशन दे देगा। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि देखो, आप सबसे पहले साइन देखो, इट्स पॉजिटिव, दैट मीन्स इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशन कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करता हूँ, अगर मैं खर्चा करता हूँ अपनी एड्स में, सो माई प्रॉफिट विल इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज। बट इट सेज 0.93, परफेक्टली हाई नहीं है, मतलब परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है, हाईली पॉजिटिव है। व्हाट दैट मीन्स इज कि एक एग्जाम्पल में मैं समझू, वेग एग्जाम्पल, वेरी वेग एग्जाम्पल, बट अंडरस्टैंड दैट इफ आई स्पेंड 100 rupees on advertisement expenditure, might be that my profit increases by 90 rupees or 94 rupees or 84, 87 rupees। Getting it? That sort of a relation, not perfectly positive कि मैं जितना
if the amount I spend here, yeah, the percentage I spend here, the same percent would be increasing there. Got it? तो if you have simply two variables, अब आप if you think normally, क्या आपका profit जो आपका profit है, will it be only impacted by ads? क्या आपका profit सिर्फ ad से impact होता है? No, there are various things. अभी तो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ ads का relation निकाला है profit before tax पे, but there are various things. तो उस केस में ना ये फॉर्मूला कोरेल जो है ये थोड़ा सा it becomes obsolete. सो नाउ व्हाट किक्स इन इज, मैम ने ये डेटा में ना डेटा एनालिसिस टूल पैक जो है ना ये ऐड करने बोला था. तो इट इज वेरी सिंपल. आई टेल यू हाउ टू एक्टिवेट टू. एनालिसिस टूल्स में जाओगे और ये एनालिसिस टूल पैक एक्टिवेट कर दो दिस पार्ट. ठीक है, वंस यू डू दैट यू विल सी दिस थिंग हियर, डेटा एनालिसिस. सिंपली जंप हियर इनसाइड और ना चूज कोरिलेशन. choose it. अब now what is it asking you? The input range. What is your input range? ये पूरा. ठीक है. ठीक है. And you select this labels in first row because if you don't ना तो it will play on x and y. यानी आपको एक वेरिएबल को x बताएगा, एक को y बताएगा. तो आप कंफ्यूज होगे, उससे अच्छा ऑलवेज चूज वेरिएबल्स. एंड वंस यू क्लिक ओके तो ये आपको ना उसने कोरिलेशन दे दिया. And if you have multiple variables, it will give us multiple. हाँ, तो वो मैट्रिक्स अभी ये 2x2 मैट्रिक्स है. तो Correct. वो 3x3, 4x4 ऐसा मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर. Okay. ठीक है. नाउ हाउ इज इट रेड? तो देखो व्हेन यू लुक. हेलो. कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो. हाँ, ये कोरिलेशन जो एक्सेल ने निकाला है ये वही वाला है ना जो तुमने एक फॉर्मूला बताया था, कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ जी, हाँ जी, ये वैसे ही है. तो ये R है technically. या दिस इज आर. एग्जैक्टली दिस इज आर. और ये जो टेबल तुमने बनाया है थ्रू एक्सेल, इन एग्जाम डू वी हैव टू मेक दिस टेबल और विल इट बी गिवन? दिस वी हैव टू मेक, बट इट्स वेरी सिंपल. यू सी, मतलब जाके सिर्फ डेटा एनालिसिस पे जाके आपको कोरिलेशन सिलेक्ट करना है एंड यू विल सिंपली गेट दिस डेटा, दिस टेबल. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. ठीक है. बट आई डोंट हैव द डेस्कटॉप वाला एक्सेल, मतलब MUID से भी हुआ नहीं है. सो they'll try to arrange that. They'll try to arrange that, या फिर वो डायरेक्टली कोरिलेशन की वैल्यू दे देंगे. ओके. या बिकॉज फिर अदरवाइज इट वोंट वर्क ना. ठीक है गाइस. सो देखो हमने ये जो ओरिजिनल शीट पे ये नंबर निकाला था 0.937. हाँ. दिस इज द सेम नंबर. Why I taught you this table is because when tomorrow there are more than one variables, तो आपको ना ये चीज दिखे कि हाँ यार दिस इज मोर देन वन वेरिएबल, सो वी नीड दिस टेबल. अब क्या बता रहा है ये? वही बता रहा है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका रिलेशन है 0.93. व्हाट डज इट जस्टिफाई? कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट तो है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है. 0.937 पॉजिटिव है. और कितना इम्पैक्ट है? तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. एकदम परफेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. Are we clear on this? Yeah, clear. Yes. ठीक है. So this was the correlation part. Now you need to understand कि it is not always कि आप कोई दो चीजें आप देखोगे and if you calculate this correlation तो it is done. It is not like that. Example, मैम ने एक example लिया था. I'll pitch in the same example. Let's say you're focusing on your profit and the time and a user spends on your website. ठीक है. तो अब the more a user spends time on your website, the more your profit will increase. हो सकता है कि ऐसा आपको दिख रहा हो कि the more the user spends. I'm sorry, I'm cutting you. ये C2 जो खाली है, मतलब PBT and expenditure, इसका कोई justification है? इसका कुछ देखो जनरली ना ये जो फिगर है ना ये सेम यहाँ पे आता है अगर आप प्रॉपरली देखो तो, बिकॉज इट्स द सेम रिलेशन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और पीबीटी के बीच में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और यहाँ से पीबीटी के बीच में. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस हियर इज कि एक्सेल ना सिर्फ
कॉलमनर रिस्पॉन्सेज देता है, हॉरिजॉन्टल मतलब रो वाइज रिस्पॉन्सेज नहीं देता. दैट इज वाई इट्स लेफ्ट ब्लैंक. बट इफ यू वर टू फिल तो वो सेम फिगर आता. ओके. ठीक है. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. तो व्हाट आई वाज ये सेइंग भी तो वाज the PBT is dependent variable and advertising expenditure is the independent one, so that's why it's filling the B column वाला. हाँ, मतलब वो उसे x कंसिडर कर रहा है और इसे y कंसिडर कर रहा है. दैट इज वाई. तो बेसिकली वो उनके बीच की रिलेशन है. द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो है ना, वो हाँ आप जो कह रहे हो बी के इससे वैसे ही फिगर आउट होगा. आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज एवरीवन, इसलिए आई केप्ट दैट पार्ट आउट. ठीक है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि इफ लेट्स से आपकी वेबसाइट जो है उस पे पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम, दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट. हो सकता है कि आपकी वेबसाइट लैग कर रही हो, इट्स स्लो, एंड दैट इज द रीजन वाई आपकी यूजर्स जो है वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. So what I mean to say is you developed a correlation that whenever users spend more time on my website, my profit increases. आपने देख तो लिया कि हाँ ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, हाँ ये मैग्नीट्यूड भी ऐसा आ रहा है, बट इज इट एक्चुअली द कॉज? यू डोंट नो इफ इट्स एक्चुअली द कॉज. तो अब इसकी कॉज जहाँ हम देखते हैं ना, वहां से रिग्रेशन आता है. इतना यहाँ पे कोरिलेशन का पार्ट खत्म होता है, एंड नाउ विल मूव टू रिग्रेशन. So is everybody clear till here? Yeah. बट ये इतना इन्फ्लुएंस था. हाँ जी. अगर हमें जब लिखने को बोला जाए तो इतना ही इन्फ्लुएंस था. हाँ, कोरिलेशन पे इतना ही इन्फ्लुएंस है. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कोरिलेशन इज अ स्मॉल स्टेप व्हाइल यू आर अंडरस्टैंडिंग रिग्रेशन. कोरिलेशन के बेसिस पे आप आगे रिग्रेशन पे जाओगे. कोरिलेशन इन इटसेल्फ इज ओनली दिस मच. So two variables are highly correlated and low correlated, and positive magnitude, negative magnitude. परफेक्ट है, परफेक्ट है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. जस्ट अ सेकेंड. ओके, ठीक है. तो अभी हमने ना इसके पहले वी सॉ दिस ग्राफ. Where we plotted here advertisement expenditure and here PBT, and we were saying that एक ये point हो सकता है where ad is 20, PBT is 40. तो ऐसे multiple अलग points हो सकते हैं. करेक्ट, आपके पास जो डेटा है. तो we'll form a line which is closest to all these points. ठीक है. अब क्या होता है, ये जो लाइन है ना, this line will give me the relation, the exact relation between profit and advertisement expenditure. अभी आपने देखा रिलेशन है, कुछ 0.93 की रिलेशन है, but do you really understand this? So no. So how do you understand it? What do you do? Do you know this is the equation of finding a line y is equals to mx plus c? आपने ये पढ़ा है? I'll just start with for those who don't know, मैं ये बता देता हूँ. कोई भी एक लाइन रहती है ना 2D में, तो उसको फाइंड आउट करने का दिस इज द इक्वेशन. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज y? तो y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज इट कैन नॉट बी फाउंड आउट अंटिल यू नो x. तो दैट इज वाई आई इंट्रोड्यूस दिस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस एज डिपेंडेंट. जब आप इन दोनों के रिलेशन निकाल रहे हो, तो यू कांट कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे इम्पैक्ट अंटिल यू नो एडवर्टाइजमेंट का कितना आपका एक्सपेंडिचर. करेक्ट. नाउ व्हाट इज सी? तो सी बेसिकली इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं.
एंड व्हाट दिस जस्टिफाइज इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. इसको मैं ऐसे लिखूं, y क्या है आपका, प्रॉफिट है, pbt, m इज समथिंग, x क्या है आपका, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, m इंटू एड एक्स प्लस c. अब c क्या डिनोट कर रहा है कि अगर मान लो आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 0 होगा, फिर भी कुछ तो आप प्रॉफिट कर रहे होगे ना, या लॉस कर रहे होगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, करेक्ट है, कुछ तो प्रॉफिट होगा बिना एड्स के भी. लाइक इन योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, अभी अगर आप एड्स नहीं भी चलाते तो देयर वुड हैव बीन सम लॉस दैट यू वुड हैव बीन इनकरिंग. शॉपिफाई का डोमेन का जो कॉस्ट होगा या शॉपिफाई वेबसाइट का कॉस्ट. सो दिस डिनोट्स दैट कि बिना एड के आपका कुछ तो प्रॉफिट या कुछ तो लॉस होगा. व्हाट एम डिनोट्स इज कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे 1 रुपए खर्चा कर रहे हो तो वो कितने टाइम्स प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहा है, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 0.8 टाइम्स. दैट इज व्हाट एम रिप्रेजेंट्स. ठीक है, लाइन क्लियर है सबको? एक सेकेंड, m represents exactly what? द इम्पैक्ट. देख, अगर आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे 100 रुपए खर्चा कर रहे हो तो एम क्या बताएगा कि 100 रुपए का इम्पैक्ट, जैसे मान लो 7 टाइम इम्पैक्ट आ रहा है, 7 टाइम्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 100 रुपए खर्च करने पे 7 टाइम्स इम्पैक्ट आ रहा है. दैट इज वाई एम एक्स, एम इंटू एक्स. ठीक है. ये भी हम डिटरमाइन, ये भी हम निकालेंगे कैसे, वो खुद हमको एक्सेल दे देगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस समझना है कि ये क्या डिनोट करते हैं. But पृथ्वी C भी तो है, तो Y is getting influenced by both M and C, right? C is not the influencing factor. C is a constant. What C says is कि अगर भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने बिजनेस में एड्स में खर्चा ही नहीं करता, फिर भी मेरा कुछ तो प्रॉफिट या कुछ तो लॉस होगा. So That is in business बोलो. context, what is C? C is the बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कुछ सी नहीं है. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, वही मैं बता रहा था कि आपने अगर शॉपिफाई पे अकाउंट बनाया अभी ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो उसका कुछ रहता है ना, 20 रुपीज पर मंथ वाली फीस है. फिर आपने डोमेन सिलेक्ट किया, दैट इज 220 रुपीज. अब लेट से यू आर नॉट रनिंग योर एड, नो एड्स रन, इसके करके कुछ रेवेन्यू तो आ नहीं रहा आपका. ठीक है, सो एटलीस्ट फिर भी आपका लॉस होगा. लॉस क्या होगा, ये जो आपने पैसे खर्च किए 220 प्लस 20 यानी 240. दिस इज द सी पार्ट. इवन इफ यू डोंट use advertisement expenditure, या if you don't spend on ads, there will still be some amount of profit or loss. And it's the C is actually the Y intercept, no? Yeah, it's y intercept. So if Yeah. it's a loss, it will be below the zero के नीचे वाला. Yeah, but you don't need to focus on that. Okay. That the graph was just to explain, you don't need to focus on that. Yeah, you're correct. ठीक है, तो वी आर क्लियर टिल हियर. अभी लेट मी टेल यू नाउ, ये जो इक्वेशन है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये बन जाती है y इज इक्वल्स टू बीटा 1 एक्स प्लस बीटा नॉट. ये व्हेन यू डू स्टैट्स तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाती है. कुछ नहीं है, c को बीटा नॉट बोल दिया, m को बीटा 1 बोल दिया, दैट इज ऑल. इतनी ही ये जो थी ना, इतना ही डिफरेंस है बीटा नॉट और बीटा 1 का. आर वी क्लियर? Yeah. Yes. Yes. ठीक है गाइज, अभी अब आप ये चीज समझ गए. सो लेट्स जस्ट नाउ वापस मूव ऑन टू द एक्सेल शीट दैट मैम हैड टॉट अस. ठीक है, सो दिस इज द शीट, यही सेम. ठीक है, द सेम डेटा. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू दिस डेटा एनालिसिस, एंड आई टोल्ड यू कोरिलेशन खत्म हो गया. अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज रिग्रेशन. सो यू गो एंड सिलेक्ट रिग्रेशन हियर. ठीक है, आप रिग्रेशन सिलेक्ट करो, ओके करो. अब व्हाट डज इट आस्क इन द फर्स्ट प्लेस, इनपुट वाई रेंज. ठीक है, y क्या था आपका, y वेरिएबल. डिपेंडेंट क्या था,
प्रॉफिट डिपेंडेंट है किस पे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे, तो y वाले इस पे आप डालोगे ये पूरा कॉलम, ठीक है। सिमिलरली x जो है आपका, x क्या है आपका, x है आपका एडवर्टाइजमेंट जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये हो गया, आपने लेबल्स ले लिए हैं ऑलरेडी, तो आप लेबल्स टिक कर रहे हैं, हम लेबल्स टिक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना हमको कॉन्फिडेंस लेवल एक चीज है, वही कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, बट अभी हमको इसको टिक नहीं करना है, अभी वी डोंट नीड दैट, ठीक है। आगे विल नीड दैट, आई विल एक्सप्लेन इट आगे। तो अभी इतना इनपुट करके डन कर दो, तो यू विल गेट दिस आउटपुट, ये ऐसा अजीब सा कुछ। तो ठीक है। गाइस मेरी स्क्रीन लैग कर रही है क्या, थोड़ा पीछे चल रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं, it's visible. ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब आपको पृथ्वी क्या वन थिंग, अभी तू एक्स एक्सिस में यू पुट वो एड वाला एड एक्सपेंस, पर अगर हाँ अभी जी। हमारे पास एड एक्सपेंस होते और किसी और चीज का भी एक्सपेंस होता तो उसमें सब कुछ डालती मैं। हाँ, तो मैं अभी आपको उसका भी आगे बताऊंगा, ठीक आगे है, आएगा वो वाला भी एग्जांपल। ठीक। तो आई विल कंटिन्यू हियर, ठीक है। अब ये जो दुनिया भर का डेटा आया ना, अब इसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें ही काम की है, दैट आई विल टेल यू। ये सारा वो रिग्रेशन वाला करके ये सारा डेटा है। हाँ, द रिग्रेशन दैट वी रन, तो इट गेव अस ऑल दिस डेटा। बहुत कम रेलेवेंट है, मैं स्लोली एक्सप्लेन करूंगा एंड यू विल सी कि ये सिर्फ डराने वाली चीज है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सबसे पहले द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या बोल रहा है, 0.879, जिसको अगर हम परसेंटेज टर्म्स में इसको इंटरप्रेट करते हैं तो 87.9%, ठीक है। दिस इज व्हाट इट सेज। आर स्क्वायर बेसिकली क्या बोलता है कि आपने ये जो मॉडल बनाया है, क्या मॉडल, कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट का रिलेशन का मॉडल। तो ये बोलना चाह रहा है आर स्क्वायर के थ्रू कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज एबल टू एक्सप्लेन 88% ऑफ द प्रॉफिट। पर ये तो आर स्क्वायर है ना, ये आर हाँ जी, थोड़ी। नहीं ये आर नहीं है, तो दिस इज नॉट द रिलेशन। रिलेशन हमको ये थोड़ी बताता है कि वो कितना आपके प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर पा रहा है। आर स्क्वायर बताता है कि अगर मान लो आपका प्रॉफिट आपने जितना भी कमाया, तो उसमें से 88% ऑफ द प्रॉफिट को एक्सप्लेन कर पाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो देर आर अदर वेरिएबल्स एंड यू जस्ट से कि आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के कोरिलेशन का मैट्रिक्स उठाया है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट अलोन इज एबल टू एक्सप्लेन द 88% ऑफ योर प्रॉफिट्स। बाकी जो फैक्टर्स होंगे दे विल एक्सप्लेन 12% ऑफ द प्रॉफिट्स। So R square is basically the causality. No, it's not the causality. It's just trying to tell, yeah, it is causality, but it's just trying to tell us कि 88% जो है उतना impact explain कर पा रहा है। हाँ, मतलब जो ऐड है सिर्फ उससे इतना प्रॉफिट एक्सप्लेन हो। नहीं, एड से इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है। आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई एड के थ्रू आप प्रॉफिट कैसे हो रहे हैं, ये आप एड के थ्रू 88% समझ सकते हो। अच्छा, ठीक है, बट ऐड के थ्रू इतना आ रहा है या नहीं वो नहीं बता। नहीं, वो आगे आएगा, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, द कोरिलेशन हियर इज अगर हम ऐड करें तो कितना प्रॉफिट है। ना, द पॉइंट हियर इज दैट 88.9% of profits can be explained through AdX। यानी भाई अगर मान लो आप अभी अपना ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, तो आप क्या बोलोगे, आपका प्रॉफिट हो गया भाई, लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। तो आपको कोई पूछेगा कि भाई तेरा प्रॉफिट ये हुआ कैसे, तो आप उसको क्या बोलोगे, मैंने एड्स में खर्चा किया, मैंने इसमें ये किया, मैंने उसमें वो किया। तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि भाई देख, मैंने जितना प्रॉफिट किया है ना, इसमें से 88% तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई एड्स वगैरह जो रन किए ना, उससे मैं बता सकता हूँ देखो
कि वो प्रॉफिट हुआ कैसे। 88% ऑफ प्रॉफिट मैं बता सकता हूँ कि हुआ कैसे, थ्रू एड्स। अच्छा, the magnitude of it is, I mean 88% I can say कि ad मतलब ad run करने से मेरा You can profit आया है। explain, not, it is not the magnitude. You can explain 88% of profits through advertisement expenditure. कल आप कोई बिजनेस उसमें जाओगे, अच्छी कोई कंपनी में जाओगे और वहां पे आपको कोई आपका सीनियर बताएगा कि भाई जा रिग्रेशन मॉडल रन कर, टेल मी हाउ मच हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट्स कैन यू एक्सप्लेन। तो आप क्या बोलोगे कि भाई प्रॉफिट हुआ कैसे ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, 88% तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सिर्फ एक वेरिएबल के थ्रू। दैट इज व्हाट इट मींस, 88% एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉफिट एक वेरिएबल के थ्रू। ओके गाइस, अगर इसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही है ना, तो अभी इसको सिर्फ इस स्टेटमेंट पे छोड़ के मूव ऑन करते हैं। विल रिवर्ट बैक टू इट पूरा होने के बाद, चलेगा? चलेगा चलेगा, ठीक है। अभी अब आपको देखो, आपने एक ये चीज देख ली, इसके अलावा ना ये दो बस इतने टर्म्स आपके काम के, द वन आई हैव हाईलाइटेड, ओनली दीज टर्म्स। ठीक है, बाकी आप पूरे टेबल को छोड़ दो, नजर भी मत लगाना, कोई मतलब नहीं है करके उधर ध्यान दोगे, इतना क्या अजीब सी चीज आई है। सिंपली आपने देख लिया कि दीज थिंग्स, मार्केट विथ योरसेल्फ, बस इतनी चीजें जो हैं वो आपके काम की है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ूं? यस। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द आईपैड। ठीक है, तो ये ना मैंने अभी वहां का स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि अभी हम इसको आगे ये देख सके। तो आई सेड कि एक सेकेंड, लेट मी हाईलाइट, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर और ये फिगर। ठीक है, ये फिगर मैंने इतने बोले हैं कि इतने ही काम आएंगे। नाउ अंडरस्टैंड ये चीज सबसे पहले, लेट्स गो हियर। ये कह रहा है इंटरसेप्ट पे दिखा रहा है -310। क्या समझ में आया आपको? आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, या आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए वापस वैसा लिखता हूँ, mx की जगह बीटा 1x था और c की जगह बीटा नॉट था। ठीक है, आपको इंटरसेप्ट पता है, मैंने बताया था c वाला टर्म होता है ये बीटा नॉट वाला, करेक्ट? तो अभी आपको y पता है क्या है, आपका y आपका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, बीटा नॉट आपको पता चल गया, दैट इज ये फिगर -310.6। ठीक है, नाउ व्हाट इज बीटा 1? बीटा 1 इज ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का कोएफिशिएंट। आपका x क्या था? x वाज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और ये बीटा 1 क्या, उसका कोएफिशिएंट ही तो है, उसका पड़ोसी। सो व्हाट यू विल डू इज यार एक इसको बार आप ये फिर से थोड़ा वो करेगा वापस, लाइक y इज इक्वल टू बीटा नॉट x प्लस बीटा बीटा 1x प्लस बीटा नॉट, और फिर ये क्या करा उसके आगे? ठीक है, सो आई टोल्ड यू कोई लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। वो जो लाइन है दैट विल गिव मी कि क्या मेरी एग्जैक्ट कोरिलेशन है, और क्या मतलब आई टेल यू, जैसे हमने वो जो ग्राफ बनाया था ना, ठीक है, दिस वाज एडेक्स एंड दिस वाज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मान लो आपके पास ये ऐसे अलग अलग पॉइंट्स थे, तो हमने बोला कि एक लाइन बनाएंगे। अब आप समझो ये लाइन आप बना क्यों रहे हो। आज ये लाइन में आपके पास डेटा क्या है, यू आर सेइंग दैट 67 रुपीज ऑफ एड स्पेंड पे कुछ 102 ऐसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, बट लेट से 68 पे आपके पास मान लो पॉइंट ही नहीं है कोई। अब आप फॉर फ्यूचर रेफरेंस हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो वो देखने के लिए ना आप ये लाइन ड्रॉ करते हो,
और अगर रिलेशन है तो मैं आगे कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ बिहेवियर, उसके लिए आप ये लाइन ड्रॉ करते हो। तो अब इस लाइन का को कैलकुलेट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के थ्रू। ठीक है, इसी को हमने सी की जगह बीटा नॉट लिख दिया है और एम की जगह बीटा 1 लिख दिया, दैट इज ऑल। समझा आरुषि? हाँ ठीक है। ठीक है, अब बीटा नॉट यानी बीटा नॉट था सी, सी को मैंने बताया था इंटरसेप्ट कहते हैं। ये लिखा है ना इंटरसेप्ट, आपको साफ दिया है। इंटरसेप्ट में कोएफिशिएंट जो लिखा है, चुपचाप सी को बिना देखे उठा के लिख दो, ये मतलब बीटा नॉट को लिख दो ये। ठीक है, y को आपने पीबीटी लिख दिया, m इंटू एक्स है, x आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, m क्या है, m इसका पड़ोसी है, दैट इज इट्स कोएफिशिएंट। ये आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ दिया है, उसका कोएफिशिएंट दिया है 7.06, तो मैं यहाँ लिख दूँ 7.06, चल जाएगा? हाँ ये m हो गया ना हमारा। हाँ ये m हो गया आपका, परफेक्ट है। अब आपको ये समझा? हाँ समझ आ गया। तो ये आपकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप बन गई है इनटू एड एक्स माइनस 310.6। अब इससे आप चीजें समझो। सबसे पहली चीज आप क्या समझ सकते हो कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे 0 रुपीज खर्चा कर रहा हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है माइनस 310.6। ठीक है, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो आपका 310 रुपए का नुकसान होगा। अभी हमने जो मॉडल देखा वो ये समझा रहा है हमको, समझे गाइस? यस पृथ्वी एक डाउट था, हाँ। आई वांटेड टू आस्क कि ये जो वैल्यू आई है -310.6, ये नेगेटिव हाँ जी। इसलिए बिकॉज जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव क्यों आ रहा है एग्जैक्टली? देखो वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि हमने जो फिगर्स इनपुट किए हैं ना, तो उसके बेसिस पे वो एक रिलेशन निकाल रहा है, तो उस रिलेशन के कैलकुलेशन में उसने ये निकाली है, एक्सेल की कैलकुलेशन है, नेगेटिव आ रहा है उसके लिए, कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन नहीं है। अच्छा, सो इट हैज नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि हमारा एड स्पेंड कितना है या फिर हमारा कॉस्ट ना कितना है, ना राइट? ना, या आई टोल्ड यू इट्स अ कांस्टेंट, इट डजंट मैटर, it's the amount of profit or loss you will have if you are if you don't spend on ads. समझ गए, गॉट इट। ठीक है, इतना पार्ट समझा। अब नाउ अगर आप यही आपका आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे 100 रुपए खर्चा कर रहे हो तो दिस फिगर बिकम्स 7.06 बन जाएगा, 706 माइनस 310.6, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस वे यू आर एबल टू डिटरमाइन, दोनों में रिलेशन तो थी, आपने डिटरमाइन कर लिया, अब कितनी अमाउंट की रिलेशनशिप थी तो वो ये है। ठीक है, नाउ दिस इज द एग्जैक्ट इम्पैक्ट कि कितना हो रहा है, 100 रुपए के खर्चे से मेरे को कितना प्रॉफिट बन जा रहा है, गॉट इट? या 20 रुपए के खर्चे से या 50 रुपए के खर्चे से कितना मेरा प्रॉफिट बन जा रहा है। तो ये हो गई एक चीज। अब इसी को ना मैम को ट्विस्ट दिस एंड से कि लेट्स से कि मेरे को ब्रेक इवन करना है अपने बिजनेस में, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ब्रेक इवन? ब्रेक इवन मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स को 0 रख लो। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू ये जो सामने था 7.06 इंटू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस 310.6। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है कि अगर मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए लॉस भी नहीं चाहिए, मेरे को अगर ब्रेक इवन पहुंचना है तो मेरे को कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 310 इधर जाएगा, 310.6 इज इक्वल टू 7.06 इंटू एड, और ये इसके डिवाइड में चले जाएगा 7.06। तो इतना आप एड पे खर्चा करोगे तब जाके आप ब्रेक इवन पहुंच पाओगे। तो ऐसे यू रीड द डेटा। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपके अभी मैंने आपको आई एक्सप्लेन्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये टर्म मैंने बोला था ये एक्सप्लेन हो गया, ये टर्म बोला था ये एक्सप्लेन हो गया। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? आई टेल यू। अब आपको ना हो सकता है कि जैसे समर्थ को थोड़ा कंफ्यूजन था, वैसे ये पार्ट हम क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसमें होगा। तो बेसिकली एक्सेल क्या करता है, हाउ डिड एक्सेल गेट दिस -310?
आई टेल यू दैट एंड हाउ दिस इज 7.06, ये सब बताऊंगा. एक्सेल अपने बैकग्राउंड में क्या करता है, एक्सेल रन्स अ हाइपोथेसिस टेस्ट. एक्सेल क्या अज्यूम कर रहा है, नल किसको मान रहा है, एक्सेल अज्यूम कर रहा है कि आप जो एड्स रन कर रहे हो उसका आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, देर इज नो रिलेशन. नो रिलेशन का मतलब क्या हो गया, आपने ये निकाला था y इज इक्वल्स टू β1x प्लस β0. ये क्या था, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था. अगर मैं बोल दूं कि β1 ही जीरो है, यानी दिस इज जीरो, तो आपका मतलब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है y पे, बिकॉज वो अल्टीमेटली जीरो ही होने वाला है. तो एक्सेल ना ये सोच के चलता है, एक्सेल सोच के चलता है, इट कंसिडर्स द नल हाइपोथेसिस कि भाई कोई इंपैक्ट है ही नहीं ऐड का. तो आपकी अल्टरनेट क्या हो जाएगी कि भाई कुछ तो इंपैक्ट है, β1 जीरो नहीं है, कुछ तो इंपैक्ट है. तो अब आपको याद है हम इसको कैसे करते थे, कि हम करते थे जी वैल्यू कैलकुलेट करते थे. इस केस में टी वैल्यू आएगा, टी वैल्यू एक्स बार माइनस आपका म्यू अपॉन सिग्मा ओवर रूट एन. इतना याद है सबको. अब देखो मैं कह रहा हूं कि ये है ना म्यू, ये मैं कह रहा हूं ये जीरो है, यानी आपका जो आपने जो ये पूरा आप बोल रहे हो कि इन जनरल मेरे बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट ही नहीं है, जीरो इम्पैक्ट है. तो आप बोल रहे हो मैंने जो पूरा पॉपुलेशन ले रखा है उसमें मेरा इम्पैक्ट जीरो है. ये इसका हम ऐसे ही तो लिखते थे ना, म्यू इज इक्वल टू जीरो. हमेशा हम नल हाइपोथेसिस में म्यू के बेसिस में कम्युनिकेट करते थे, करेक्ट. तो अभी आपने नल हाइपोथेसिस में म्यू इज इक्वल टू जीरो लिख दिया है, तो दिस इज जीरो. एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या होता था, सैंपल का एवरेज, सैंपल का मीन. ठीक है, अब आपने ये जो सैंपल डाला था, वो जो डेटा डाला था एडएक्स और पीबीटी का, जो 5-6 पॉइंट डाले थे, उसके बेसिस पे उसने आपको ये आउटपुट दिया. ठीक है, वो आउटपुट के बेसिस पे वो बता रहा है कि आपका ये एक्स बार जो है ना, ये दिख रहा है ये 7.06 वाला, दैट इज कॉल्ड एक्स बार. कि आपने जो सैंपल दिया ना उसके बेसिस पे भाई उसको दिख रहा है कि नहीं भाई इम्पैक्ट 7.06 तो है, पर आपने तो बोला है कि जीरो है. दिस ये जो पूरा होता है ना, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, ये 9.2 वाला. ठीक है, 0.92 वाला जो है ये आ गया उधर. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो इट विल गिव 7.646 विच इज नथिंग बट आपका ये टी स्टेटिस्टिक्स, जो हम टी वैल्यू बोलते थे. करेक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट? पृथ्वी यार ये टी वाला रिपीट कर दीजिए. अभी आप सबको साइड रखो, आप बस ऐसे याद करो कि हम कुछ हाइपोथेसिस टेस्ट करते थे, हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट है कि नहीं मेरे प्रॉफिट पे. तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब अभी अज्यूम नहीं, एज इन मैं नल स्टेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई कोई इम्पैक्ट नहीं है. मैं बोल रहा हूँ म्यू मेरा जीरो है. ठीक है, मेरे को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए टी वैल्यू निकालने के लिए क्या चीजें लगती थी, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन, इतनी वैल्यू लगती थी. बट हमने म्यू को जीरो क्यों लिया? अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जीरो है तो एड वाला जीरो होगा ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. देखो ऐड वाला जीरो मतलब आपके लिए, आपके हिसाब से क्या एक्स बार जीरो होना चाहिए? मतलब y is equal to mx plus c में x जीरो होगा ना. एक्स जीरो नहीं है, आप बोल रहे हो एक्स, तो आप खर्चा कर रहे हो, आप एड पे खर्चा अभी भी कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं जा रहा है. दैट इज व्हाई वी यूज β1. खर्चा एक्स इज व्हाट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा तो आप कर रहे हो ना. तो मींस β1 जीरो है. हाँ, β1 जीरो है. एंड हाउ इज β1 रिलेटेड टू म्यू? β1 नहीं जीरो है. देखो आप β1 कह रहे हो कि आपने पूरा पॉपुलेशन जो है, आपकी पॉपुलेशन को मतलब अपन जब पूरा वो कहते थे कि आप आज तक आपने जितना काम किया है आपके बिजनेस में, उसमें आपने बोला कि भाई मेरा तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. तो ये म्यू जो था ये पॉपुलेशन का डिनोट करता था. ठीक है, पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया कि आप 20 साल से काम कर रहे हो. ठीक है,
तो 20 साल में आप कह रहे हो आज तक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ने मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं किया, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन वाला जो है वो म्यू रहता था हमेशा, तो दैट यू विल पुट 0। अभी आपने जो सैंपल डाला, सैंपल क्या, जो हमने ये शीट 1 में डेटा था, ये ऐसे ये जो टेबल बना हुआ था, ये आपने सैंपल डाला, दिस इज नथिंग बट द सैंपल। अब आपने जब सैंपल डाला तो उसने आपको क्या वैल्यू दी कि β1 की वैल्यू यही थी, ये 7.06 जो हमने यहाँ लिखी भी, ये y इज इक्वल टू 7.06, y यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7.06 इंटू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर प्लस बीटा नॉट जो था दैट इज -310, ठीक है। तो आपने सोचा था कि मैं आज तक 20 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, ठीक है, उसने कभी भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ने कभी भी इम्पैक्ट नहीं किया, 0 है। पर आपने अभी जो सैंपल लिया, उस सैंपल के बेस पे आपको क्या दिख रहा है कि नहीं भाई इम्पैक्ट तो कर रहा है, 7.06 से इम्पैक्ट कर रहा है, करेक्ट है। तो फिर आप इसकी टी वैल्यू जो कैलकुलेट करते हो 7.06 माइनस 0, और ये टर्म जो है दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऊपर दिया था 0.92, तो ये आ जाएगी 7.646, ये आपकी टी वैल्यू है जो ऊपर में यहाँ दे भी रखी है, ये देखो टी स्टेटिस्टिक, ये वैल्यू, ये टी स्टेटिस्टिक और ये वैल्यू, ये देखो 7.646, ये समझा। हाँ, पर इसमें हमने अज्यूम किया ना, मतलब इसमें डेटा में कहीं नहीं दिया था कि द कंपनी थॉट दैट देयर द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट कॉजिंग एनी। हाँ नहीं देखो, हमने अज्यूम नहीं किया है, ये एक्सेल अज्यूम करके चलता है, क्योंकि एक्सेल ना, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि जो डेटा आ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है, एक्सेल इसको लेके कैसे आ रहा है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल मान लेता है कि आप कोई चीज़ के 2 फैक्टर्स के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो एक्सेल मानता है कि रिलेशन है ही नहीं भाई, नहीं है तो उसको आपने 0 मान लिया म्यू को, ठीक है। फिर आपको पता चला एक्स बार जो आपका आया, कुछ तो वैल्यू आई, नहीं कुछ तो रिलेशन है, तो इसके बेसिस पे आपकी नल हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड रॉन्ग। क्या प्रूव रॉन्ग हुई, नहीं भाई रिलेशन तो है, वी वर थिंकिंग दैट देयर इज नो रिलेशन, बट इन फैक्ट देयर इज अ रिलेशन एंड देयर इज अ कॉज, दैट व्हेनेवर एडवर्टाइजमेंट यू इनकर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर योर प्रॉफिट गोज अप। ठीक है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा इसने एक्सेल ने हमें टी वैल्यू दिखाई है, बट देयर कैन आल्सो बी पॉसिबिलिटी कि वो जी वैल्यू दिखा दे इफ द डेटा इज लार्ज। नहीं, इट विल ऑलवेज शो टी वैल्यू, even if the data is more than yeah, because if you remember z value कब निकालते थे, when you know sigma of the population, do you know sigma of the population? अच्छा ठीक है, we will never, मतलब in this we will never know the sigma of the population, we will always be given a sample data, तो excel अपने आप s तो कैलकुलेट कर लेगा, याद है we used to calculate stdev.s, तो एक्सेल तो ये अपने आप कर सकता है, हाँ डन, तो दैट इज व्हाई इट विल ऑलवेज गिव टी वैल्यू, ठीक है। ठीक है, क्लियर है गाइस। लेट मी गेट बैक टू द ये वाला पार्ट, ठीक है। अभी लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग ग्रीन, ठीक है। मैंने आपको ये वैल्यू पूरी क्लियर कर दी, आपको ये समझ गया क्या है, आपको ये भी समझ गया है, स्टैंडर्ड एरर भी आपको समझ गया है, टी स्टैटिस्टिक्स भी आपको समझ गया है, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पी वैल्यू, आपको पी वैल्यू याद है और डू आई नीड टू रिवाइज, डज एवरीबॉडी नो पी वैल्यू, ठीक है। फिर भी एक बारी फॉर पीपल, एक बारी ना फॉर पीपल आई जस्ट से, बेसिकली पी वैल्यू क्या बोलती है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वैल्यू एज एक्सट्रीम एज द वन वी गॉट इज पी वैल्यू। इस केस में आप पी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। आपने आपकी नल हाइपोथेसिस, नल कह रही थी नो इम्पैक्ट, करेक्ट, ठीक है, बट यू गॉट एन इम्पैक्ट ऑफ दिस मच, करेक्ट है।
तो पी वैल्यू डिनोट्स कि आप जो कह रहे थे कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट, बट ये पी वैल्यू बताना चाह रही है आपको कि देयर इज सम इम्पैक्ट। ठीक है, ये आपके 7.06 से वो चीज प्रूव होती है। तो पी वैल्यू ना बेसिकली क्या है, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप 95% ले रहे हो तो अल्फा वैल्यू 5% है आपकी, करेक्ट है। तो पी वैल्यू अगर इससे कम है, पी वैल्यू इज लेस देन 95%, तो आपका डेटा जो है वो एरर रेंज में लाई कर रहा है। याद है हमने वो किया था, वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते थे और उसमें हम कॉन्फिडेंस लेवल मार्क करते थे, और अगर डेटा उसके बीच में कहीं आ रहा है तो ठीक है, तो भाई नल हाइपोथेसिस फिक्स सही है। बट उसके बाहर आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस फेल हो गई हमारी, करेक्ट है। तो अभी देखो आप 95% कर रहे हो, यानी आपका 2.5% 2.5% ईच साइड आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता। अभी आपको दिख रहा है कि 0.006% है, यानी वो 2.5% के इधर, यानी वो एरर रेंज में लाया कर रहा है। मतलब आपकी नल गलत है। आपने नल क्या बोली थी, मतलब एक्सेल ने नल क्या ली थी कि आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन नहीं है। बट क्योंकि ये नल को डिस्प्रूव कर रहा है, पी वैल्यू जो है वो एरर रेंज में, तो दैट सिंपली मीन्स कि आपकी नल गलत है और आपकी अल्टरनेट सही है। अल्टरनेट क्या है कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो है। समझा इतना? पी वैल्यू मेरी छोटी लोअर 95% वाली वैल्यू से है ना, क्योंकि वो 4.93 है, इसलिए रिजेक्शन एरिया में आ रहा है। 4.93 कहाँ है? 4.93 तो लिखा है वो लोअर 95% के नीचे। नहीं, लोअर 95% को मत देखो, मैं अभी आपको पी वैल्यू वाला ये फिगर बता रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा, सिर्फ वही देख रहे हैं अभी हम, हाँ, एंड वी आर अभी सिर्फ कंपेयरिंग इट विद 5%। या तो आपका 5% था, ठीक है। आपका पी वैल्यू से आपको क्लियरली जस्टिफाई हो रहा है कि वो एरर रेंज में लाई कर रहा है। आप 2.5% ईच साइड लेके चलते हो, ये उससे भी कम है, तो ये सिंपली एरर रेंज में। एंड बिकॉज दिस इज एन एरर रेंज, तो ये क्लियर है कि नहीं भाई इम्पैक्ट तो है, आपकी नल हाइपोथेसिस जो थी वो गलत है। तो ये फिगर भी क्लियर है अभी। कैन आई मार्क दिस ग्रीन? पृथ्वी एक चीज पूछनी है। बोलो। हम या तो टी वैल्यू निकालते हैं तो जी वैल्यू, या तो पी वैल्यू, उसमें दोनों क्यों हाँ जी। निकालते हैं? ये एक्सेल खुद निकाल के दे रहा है। इट्स अ बेनिफिट ना, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, एक्सेल खुद ही निकाल के दे रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट दोज मीन। ठीक है, पर हम क्यों, मतलब व्हाई आर वी चेकिंग दीज वैल्यूज? यू आर चेकिंग दीज वैल्यूज बिकॉज अगर ये पी वैल्यू जो है आपकी, अगर ये 2.5% से ऊपर होती, ठीक है, अगर ये मान लो 3% आती, तो आपका जो पी वैल्यू है क्या वो एरर रेंज में है? नहीं, वो एरर रेंज में नहीं है, वो आ गया अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो दैट वुड रीइंफोर्स योर नल हाइपोथेसिस। तो मतलब फिर आप कंक्लूड। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैं समझ गई कि पी हमने चेक कर लिया कि वो हाँ, उसमें एरर में है कि नहीं है, बट देन व्हाट इज द यूज ऑफ पी देन? व्हाट इज द यूज ऑफ पी? कि अभी तक मेरे को आपको पूरा बीटा नॉट बीटा वन समझाना था, तो मैं लाइन से आ रहा था। फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज पी वैल्यू। अगर वो पी वैल्यू 2.5% से कम है, अज्यूमिंग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 5% का ब्रेकआउट हो गया, 2.5% ईच साइड। तो अगर वो पी वैल्यू इज लेस देन 2.5%, तो आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का कुछ इम्पैक्ट है। अगर वो 2.5 से ज़्यादा आ रही है तो मतलब आपकी नल सही है, और नल आपने क्या ली थी कि कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर उसने बोल दिया कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि ये मॉडल ही खराब है भाई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का तो इम्पैक्ट ही नहीं है कुछ। हाँ, आई अंडरस्टूड अबाउट द पी वैल्यू, बट आई एम सेइंग टी वैल्यू का यूज क्या है, वो हम क्यों देख रहे हैं? हम टी सिर्फ वैल्यू। टी वैल्यू ना, हाँ, तो टी वैल्यू एक्सेल कैलकुलेट करके दे रहा है टू बेसिकली आपका जो ये जो फिगर आया ना 310 और 7.06, ये आपको समझ में आया कि वो क्यों निकाला है और उसने कैसे निकाला है, उसके लिए टी वैल्यू लिखी है, और मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा था। आपको कोई लेना देना नहीं है टी वैल्यू से, ओके, ठीक है। ठीक है। दिस यार इज जस्ट। हाँ जी, बोलो। एक बार वापस से मैं बोल रहा हूँ, पी वैल्यू को आपने बोला कि जैसे 5% अल्फा लिए है, 2.5 दोनों साइड होगा, हाँ जी, क्योंकि 2.5 से कम है वैल्यू, पी तो वैल्यू। वो
पी वैल्यू करेक्ट, हम्म, इसीलिए अपन इसको एरर रेंज में मान रहे हैं। बिकॉज वो 2.5% से कम है, इट विल फॉल ऑन द एरर रेंज। करेक्ट। उसके बाद फिर नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट से कैसे कनेक्ट किया हमने? नल और अल्टरनेट से कनेक्ट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि एक्सेल ने ना बैकग्राउंड में ये पूरा किया, ठीक है। उसने पूरा प्रोसीजर किया कि उसने नल हाइपोथेसिस ली, फिर अल्टरनेट ली, फिर Correct, उसने वो टी वैल्यू निकाली, फिर हाँ, टी P- वैल्यू, फिर जो टी वैल्यू आई उसका उसने पी वैल्यू निकाला, फिर पी वैल्यू जो निकाला वो उसने यहाँ पे लाके रख दिया। सो यू विल चेक द पी वैल्यू कि वो 2.5% से ऊपर है कि नहीं, या 2.5% से नीचे है। अगर नीचे है तो यू नो कि आपकी नल गलत, मतलब एक्सेल ने जो नल ली थी वो गलत है, एंड इट डज इम्पैक्ट। अभी आगे क्या होगा, यू विल सी अ केस जहाँ पे दिस पी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2.5%, और फिर भी यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाएगा ये वाला। तो आप पी वैल्यू देख के समझोगे कि नहीं, दैट इज अ बोगस थिंग, जो इम्पैक्ट दिखा रहा है वो बोगस है। इनफैक्ट ये नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। वी विल सी दिस केस ऑल्सो। ओके ओके। ठीक है, तो दैट इज वाई इट बिकम्स रेलिवेंट। कल को ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक रेटिंग करके नया इंट्रोड्यूस कर दूं, एक कि रेटिंग से कितना फर्क पड़ रहा है, एंड आई राइट कि उसका 4.7 ऐसा कुछ भी फिगर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको उठा के ले नहीं लोगे, आप देखोगे कि भाई नल सही तो नहीं है कहीं। ठीक है गाइस, हेलो, यस पृथ्वी। यस यस। ठीक है। अब नाउ जो लास्ट की जो 2 वैल्यू बच गई है ना, मैं अब आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, लेट्स, ये एक पी वैल्यू के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। लेट्स गेट बैक। ठीक है, अभी ये 2 वैल्यू बच गई है, बाकी ये भी हो गई। ये जो फिगर है ना, ये ऐसा अजीब सा आता है, इसको ना आप जाके ऊपर ये यहाँ पे जाके ये परसेंट सिलेक्ट कर लोगे ना, ठीक है, तो वो वैल्यू ठीक हो जाएगी। ये ऐसे अजीब सी वैल्यू आती है, ये भी, तो इन सबको ऊपर से आके परसेंट पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक हो जाएगी वैल्यू। वो मैंने अभी की थी ठीक। तो जस्ट नो दैट अगर एग्जाम में अजीब सी वैल्यू है, जस्ट चेंज इट्स फॉर्मेट टू परसेंटेज। तो ये वो थी। अब जो बच गई लास्ट की ये 2 चीजें। अभी देखो मैंने आपको ये जो सैंपल दिया, इसमें मान लो 6 डेटा पॉइंट्स थे, 6 मेरे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर थी, 68 या कुछ भी 170, उसके 6 इम्पैक्ट दिख रहे थे मेरे को। ठीक है, मान लो कि मैं आपको 100 डेटा पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है, तो आपका जो एक्सेल प्रिडिक्ट कर पाएगा ये रिलेशन जो 7.06 निकाली है, ये और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएगा, करेक्ट है? ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज कि अभी आपने जो डेटा पॉइंट्स निकाले उसके लिए आपने ये समझा कि एडवर्टाइजमेंट का भाई इतना इम्पैक्ट होता है। बट लेट से अब ये भाई, ये तो इसलिए ये वैल्यू आई है कि आपने कुछ गिवन डेटा पॉइंट दिया, बट दिस विल नॉट होल्ड ट्रू फॉर 100 डेटा पॉइंट्स। 100 डेटा पॉइंट्स के लिए हो सकता है ये वैल्यू चेंज हो जाए। तो दैट इज वेयर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कम इन। कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे हम बोलते थे वही बोलते थे, what you will say is कि I am 95% confident कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट इज समवेयर बिटवीन 4.93 to 9.19। इतना इम्पैक्ट तो वो मेरे प्रॉफिट को करता ही है। समझा गाइस? एनी डाउट? चलो, तो अभी आपको कितनी सारी वैल्यूज दिखानी थी? मैंने बोला था कि ये एक वैल्यू काम की है, एक ये वैल्यू काम की है, एक ये दिस एंड दिस। खत्म हो गया। बट पृथ्वी, ये लोअर 95 अपर 95 वो कॉन्फिडेंस इंटरवल था, बट उस वैल्यू से मैं क्या इंटरप्रेट कर रही हूँ, वो जो 4.93 और 9.199 हाँ, है? बता रहा हूँ। तो अभी आपने ये जो लिखा था ना, y यानी आपका
profit before tax is equals to 7.06 into add minus 310.6. तो ये आपका पॉइंट एस्टिमेट है, एक सिंगल एस्टिमेट है, करेक्ट है। और ये एस्टिमेट आपका आया है 6 डेटा पॉइंट्स के लिए। तो दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट। आप एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हो? आप रेंज दे देते हो। तो आप क्या बोलोगे? 95% कॉन्फिडेंस हो कि पीबीटी है ना, या तो वो 4.93 इंटू एड माइनस 310, या वो पीबीटी जो है वो 9.19 इंटू एड माइनस 310। ये दोनों आप जब सेम एड के लिए कैलकुलेट करोगे ना, तो इसके बीच में कहीं आएगा। मान लो एड में 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, तो आप प्रॉफिट को कैसे इंटरप्रेट करोगे कि 4.93 इंटू 100 जो आता, इसको मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 493 माइनस 310, समवेयर अराउंड 180 समथिंग 183, और पीबीटी इज इक्वल्स टू ये 919 माइनस 310, ठीक है, तो 609। तो मेरा प्रॉफिट जो है, अगर मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं 100 रुपये एड में खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो है ना वो कहीं 183 से लेके 609 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हमें रेंज दे रहा है बेसिकली। या जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज निकालते थे ना, हाँ। सेम वही दे रहा है। इट्स जस्ट ठीक कि है। आप एक पॉइंट एस्टिमेट पे भरोसा नहीं कर सकते 7.06 पे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डेटा, कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स के लिए। आपने 6 डेटा पॉइंट्स दिए तो ये वैल्यू दे रहा है। हो सकता है कि आप सिर्फ 3 डेटा पॉइंट देते तो 4.93 देता। हो सकता है कि आप 100 डेटा पॉइंट देते तो 9.19 देता। सो दैट इज द रेंज। ओके ओके गाइस, अभी ये एक सेशन का खत्म हुआ है। अभी इसके बाद का जो आगे पढ़ाना है, तो शुड वी कंटिन्यू नाउ? इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल? यस। ठीक है, चलो लेट्स गो फिर। अब आप, हमने पहले सबसे पहले क्या बोला था कि प्रॉफिट जो है मेरा, क्या वो सिर्फ एड से इम्पैक्ट करता होगा? मतलब सिर्फ एड से क्या मेरे प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा? तो नहीं, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, अलग अलग चीज़ों के करके इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो मैंने अभी y इज इक्वल्स टू बीटा 1x प्लस बीटा नॉट लिखा था? तो क्या मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो बीटा 1x था, ये तो ऐड से रिलेटेड था, तो बीटा 1x1, फिर कोई और होगी, कोई चीज़ और होगी, इसको बीटा 2x2 लिख दूँ, और कोई एक और वेरिएबल होगा जिससे इम्पैक्ट कर रहा होगा, बीटा 3x3। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जो मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहे हो एट द सेम टाइम। तो उनको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, करेक्ट है। जब तक मेरे पास एक से मैं इम्पैक्ट जज कर रहा था, तब तक मैं ऐसे लिख रहा था। जब मैंने देखा कि नहीं यार, प्रॉफिट का तो बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट हो सकता है प्रॉफिट मेरा, तो क्या मैं उसको यही सेम इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? अब यहाँ पे आता है जो ये मल्टीपल वाला पार्ट है ना, यहाँ से रिग्रेशन का मेन चालू होता है, ठीक है। अब ये जो आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्या था? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है, ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, मतलब ये x1 है, x2 है, x3 है, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। तो कोई भी जो वेरिएबल होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। कैन वी कवर द रेस्ट टुमारो? यहाँ से रिग्रेशन चालू है गाइस। अनन्या, प्लीज टेक अ कॉल यार। आप बताओ क्या करें? पृथ्वी, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है ना, लाइक या मतलब एक बार ही कंफर्म करने दो। अनन्या, लेट मी जस्ट कॉल हिम।
Prithvi, we can do it tomorrow morning also if मतलब I more think Prithvi is comfortable on for a you. call right now, so he Oh. won't be able to hear us. No, I heard it. Yeah. All I was just मतलब देखो यार guys, this topic was supposed to be lengthy क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर मैं आपको क्या है कोई भी एक मिस कर देता ना तो कल मतलब एग्जाम में कोई चीज़ आपको एनालाइज करने के लिए आती तो आप शायद बता नहीं पाते. तो अभी अगर इसको नहीं कंटिन्यू करना है तो दिस विल बी सेशन 1 एंड विल गो अगेन. कल फिर कुछ कल और कर लेंगे. अभी हमने एक वेरिएबल के रिगार्डिंग देखा है, ऐसे हमें मल्टीपल वेरिएबल के रिगार्डिंग देखना है. तो अभी तक जो हार्ड पार्ट था ना ये खत्म हो गया है. अब इसके बाद और पार्ट आएगा, बट क्योंकि आपको वो टेबल समझ गया ना रिग्रेशन का, तो अब थिंग्स वुड बी मच इजियर. न्यू थिंग्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड, पर अभी थिंग्स वुड बी मच इजियर. Prithvi, kal actually कल has a class tomorrow in the morning. हाँ ओके तो ओके. cover it in the evening as well. पर अभी it's already too overload with all the stuff that. या अग्रीड. तो लेट्स जस्ट एंड इट हियर. एक बार या तो यू कैन पुट अ पोल कल Yeah. के लिए टाइमिंग्स के लिए, तो रिकॉर्डिंग तो Yeah, हमें yeah. मिल ही जाएगी. तो अगर किसी को सुबह करना है सुबह भी ठीक रहेगा, क्योंकि इवनिंग को हमारे वो बाकी दो भी है चलेगा, ऐसे और चलेगा. इको. मतलब I think maybe we can put up a poll कि आज करना है या कल करना है. I think there will be आज तो आई थिंक रहने ही आज देते हैं. नहीं होगा. हाँ हाँ, या कल का टाइमिंग का लेट्स एक सी. बार देख लेते हैं. लेट्स सी. अभी आप बेस पे क्लियर हो सारे. अब आपको जो मल्टीपल वेरिएबल्स है ना, इफ नॉट पॉसिबल तो एकदम संडे अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं. हाँ that would also work. लेट्स जस्ट पुट अ पोल. ठीक है, ठीक है. चलो गाइस, बाय बाय. ओके, थैंक यू. ओके, एक बार पोल कर लेंगे ग्रुप पे. I think there are people who are okay to do it today as well. You're okay. चलो ठीक है गाइस, लेट्स मीट टुमारो. बाय बाय. थैंक यू. Bye. Thanks. वेलकम. थैंक्स प्राची. वेलकम भाई. एक सेकंड यार, पृथ्वी मेरे को बस एक चीज बता Hello? दे. Am I audible? हाँ उदिति, यू आर. Prithvi, I was saying that there were some people who wanted to do it today. अभी मतलब अभी की एज इन हाँ मतलब अभी, but if you are okay doing it. यार डबल करके तो देखो वैसे फायदा नहीं है. द ओनली थिंग इज अभी तो आप दोनों ही हो और देयर आर मोर. अभी आप दोनों ही हो ना. मतलब मैं तो यही बोलने के लिए ही रुकी थी, बाकी people have left. यार मैं इसलिए नहीं पुश करना चाह रहा बिकॉज जेन्युइनली बोलूँ ना तो द डे हैज ऑलरेडी बीन ओवरलोड, क्योंकि हम 9 बजे तक सब बिजी थे कंसल्टिंग में कई लोग. तो दैट इज व्हाई आई डिडंट पुश. इफ पीपल वांटेड टू लीव तो लेट्स जस्ट पुट एन एंड, क्योंकि ये अपने आप में ना थोड़ा हेक्टिक टॉपिक है. किसी ने चैट पे डाला था कि they wanted to do it today, तो मैं बस वही बता रही थी तुमको. बट इफ अच्छा हाँ यार पृथ्वी एक चीज मेरे को बस बता दे. हाँ बोलो ना. हम लोग वो ले रहते हैं राइट कि p वैल्यू वाज 0.00604. अब क्योंकि वो हाँ जी. 2.5 से कम है तो नल हाइपोथेसिस को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे राइट. हाँ जी. मेरे को ये पूछना है कि अल्फा हम लोग जब 5 लिए थे तो दोनों साइड 2.5 लिए थे. तो मान लो कि p वैल्यू अगर 99% रहता तो वो कहीं ना कहीं उस साइड राइट साइड वाले अल्फा के अंदर ही फॉल करता. आपकी p वैल्यू जो आएगी ना वो हाँ. कभी भी 99% वाले वेरिएबल पे नहीं आएगी. आपकी वैल्यू हमेशा 0.25 तरफ से ही आएगी और लेफ्ट आपको साइड ही आएगी. हाँ जी. इसका कुछ प्रैक्टिकल लॉजिक है या फिर मतलब ऐसा होता है ना एज इन देखो, जब आप कोई चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो 99% प्रोबेबल है तो वो तो आप उस तरफ से भले आप देख रहे हो, बट उसकी डेफिनेशन कैसी आती है वो समझो कि आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बूस्ट किया है और वो 5% या 2.5% से कम आ रही है. अगर वो 99 आ जाएगी ना तो आपको तो रीइंफोर्स कर रही है ना कि भाई 99% चांसेस है कि ये नल हाइपोथेसिस सही है. करेक्ट. p वैल्यू हमेशा आप देखोगे ना तो लेफ्ट साइड. अगर नेगेटिव आनी रहती है ना तो 0 से 5 के बीच में या 0 से 2.5 के बीच में ही आएगी. ठीक है, तो ऊपर यही मान के चल रहा हूँ मैं कि 2.5 के ऊपर रहती तो मैं एक्सेप्ट कर लेता. नीचे है तो नल हाँ रिजेक्ट जी, कर रहा हूँ. बस और p That is वैल्यू all का you need. ओवरऑल यूज केस क्योंकि हम लोग x बार ऑलरेडी ले लिए थे, अलग से p बार लेने का लॉजिक क्या था? एक्सेल यूज कर रहा है बस यही है या कुछ और भी है? क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिकल लॉजिक, कुछ प्रैक्टिकल लॉजिक इसका अलग से है क्या p वैल्यू लेने का?
इसमें पी overall वैल्यू regression हमने नहीं ली, एक्सेल ने लाई, और उसका प्रैक्टिकल लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हाँ। देखो आप जब कोई भी ये देख रहे हो कि कोई भी आपने अगर हाइपोथेसिस जैसे एक्सेल ने रन किया, अगर एक्सेल नहीं करता और वो आप खुद करते होते और आपको रियलाइज होता कि मैंने तो नल मान रखी है कि यार नहीं होना चाहिए इम्पैक्ट, पर यार ये तो पी वैल्यू बता रही है कि इम्पैक्ट होगा, तो तभी फिर आप आगे प्रोसीड करोगे ना कि इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छा कैसे इम्पैक्ट हो रहा है वो देखने के लिए, तो उस चीज के लिए पी रेलेवेंट हो जाता है कि आप तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर पी वैल्यू ही आपकी अच्छी आ जाती, कुछ बड़ी बड़ी सी फिगर आ जाती 5-6%, तो आपको तो क्लियर दिख जाता कि यार ये तो नल हाइपोथेसिस सही प्रूव कर रहा है। पर फिर हम लोग टी भी तो निकाल रहे हैं ना। हाँ देखो, वो टी हम नहीं, वो तो दोनों यार एक्सेल का काम है, एक्सेल आपको आधी अधूरी चीज थोड़ी देगा। आप चाहो ना तो आप सिर्फ टी वैल्यू भी यूज कर सकते हो। आप टी वैल्यू याद है आप 95% पे जो टी डॉट इनवर्स करके निकालते थे, या तो आप टी डॉट इनवर्स करोगे 95% पे निकालोगे तो वो 1.96 1.97 के अराउंड आती थी वैल्यू, याद है? यस यस तो अब वो 1.96 के सामने आपकी 7.646 है, तो बहुत बाहर है हाँ। एरर जोन में। हम्म तो आप वैसे भी सोच सकते हो अगर आपको पी वैल्यू के साथ नहीं सोचना है तो।